سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں۔ آج آپ کو جو ہم نے یہاں زحمت لی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ دو تین سے زیادہ برننگ ایشوز ہیں جن سے آپ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ریکارڈ کی درستی کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم انتظامیہ کا شکریہ ایک بات پہ کریں، خاص کر لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا۔ اس کے بعد تو باقی باتوں پہ ہمیں جو کہنا ہے وہ کہیں گے انتظامیہ کو لے کر۔ وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم مسلسل چیف سیکرٹری سے بھی اور لیفٹیننٹ گورنر صاحب منوج سنہا صاحب سے رابطے میں تھے۔ 2 دن پہلے میں بھی ان سے ملا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے پریس کانفرنس دی تھی، رفیع صاحب نے، اور کل ہمارے پریزیڈنٹ صاحب 2 دن پہلے چیف سیکرٹری سے بھی ملے اور لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے بھی۔ تو جو سب سے پہلے جو مدعا لے کر ہم ان کے سامنے جا رہے تھے وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ جو انہوں نے ایج ریلیکسیشن کو ختم کیا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہم نہیں ان کا اس سے یہ ہو رہا تھا کہ بہت سے ہمارے جو خواہش مند امیدوار ہیں کے ایس میں جو قسمت آزمانا چاہتے تھے تو ان کی 5 سال کی محنت جو تھی وہ ضائع ہو رہی تھی۔ تو فائنلی ہماری ریکویسٹ ہے اور لوگوں نے بھی کی ہوگی، تو ہماری درخواست یہی ہے یا ہم نے ان کا زور دیا کہ اس میں ہمارے بچے جو ہیں جموں کشمیر سے جن کا تعلق ہے وہ لوگ جو اس امتحان میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ جو SRO 103 ہے اس کو واپس لیا جائے۔ تو ہم شکر گزار ہیں ایڈمنسٹریشن کے، منوج سنہا صاحب کے، چیف سیکرٹری صاحب کے، کہ انہوں نے یہ آرڈر واپس لے لیا ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر ہمارے ہاتھوں کو بھی کوئی اچھی بات ہو تو اس میں تھوڑا سا کریڈٹ ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ جو ہمارے پریزیڈنٹ نے بالخصوص گورنر کے ساتھ اور چیف سیکرٹری کے ساتھ اس کو پروجیکٹ کیا، ایجیٹیٹ کیا، وہ ہائی وے کا مسئلہ ہے۔ ہم اس بات پہ ریکارڈ پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ پچھلے 70-75 سال سے یہ شاہراہ جو ہے یہ اسی طرح لٹکی ہوئی ہے۔ جب بھی معمولی برف گرتی ہے، بارش ہوتی ہے تو پسیاں آتی ہیں، اور جب پسیاں آتی ہیں تو راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ہم حیران ہیں کہ سرکار خاص کر کیونکہ یہ مرکزی حکومت یونین گورنمنٹ کے ڈومین میں ہے، یہ سڑک ہے، تو یہ سڑک ہمارے لیے ایک مصیبت اور شاید بلیک میلنگ کا ایک بدترین ذریعہ ہے۔ ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی جلد ممکن ہو، اس وقت تو آلٹرنیٹ انتظام جو ہے وہ ہو جائے گا کچھ دنوں میں، لیکن ایک ایسا روڈ تعمیر کیا جائے جو لوگوں کو کے عبور و مرور میں جو دقتیں آ رہی ہیں وہ ونس فار آل ختم ہو جائیں۔ اور اسی ضمن میں ہم نے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور پہلے بھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے۔ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں جو مسافر جموں میں سٹک ہیں اور یہاں کشمیر میں بھی ٹورسٹ ہیں، ایک تو جو بیمار ہیں اور وہ لوگ جو کئی دنوں سے جن کے پاس اب وہاں کھانے پینے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، ان کے لیے ان کو اسپیشل جو اڑانے ہیں ان میں ان کو 2-3 ساٹیز فری رکھی جائیں تو ان کو ایئر لفٹ کیا جائے۔ تو اس بارے میں ہم آپ کی نوٹس میں لانا چاہتے تھے۔ ایک اور چیز جس کا ہم ذکر کرنا بطور خاص چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آج 30-40 سال میں انپریسیڈنٹڈ جو یہ سنو فال ہوا ہے، میرے خیال میں 30-40 سال اس سے پہلے اتنی زیادہ برف گری، لیکن جو چیز ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ انتظامیہ جو تھی وہ شاید اس کے لیے تیار نہیں تھی، خاص کر ہمارا میکنیکل ڈویژن اور ہماری جو یہ سری نگر شہر میں جو میونسپلٹی ہے یا جو ہماری ٹاؤن ایریا کمیٹیز ہیں وہ اس حد تک تیار نہیں تھی جتنا ان کو ہونا چاہیے تھا، اور ان کی سمجھ میں ہی 2-3 دن نہیں آیا کہ کیا ہو، جس کے نتیجے میں کئی لوگوں کی وفات بھی خاص کر رورل ایریاز میں ہو گئی، وہ ہسپتال تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ اب جبکہ کہیں کہیں خدا کر کے سڑکیں صاف ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہمارے انٹیریئر ایریاز ہیں خاص کر سری نگر جیسے شہر میں بھی ابھی وہاں سے برف اٹھانا باقی ہے۔ رورل ایریاز کی تو بات ہی نہیں۔ ہم سرکار پر زور دیتے ہیں کہ اس جتنی جلدی ممکن ہو برف اٹھائی جائے، اور اگر سرکار نے یہ مطالبہ بھی ہماری طرف سے آیا تھا کہ اس کو ایک ڈیزاسٹر ہٹ یا آفت زدہ ایک نیچرل کلائمیٹی کے طور پہ لیا جائے۔ کاغذی طور تو اعلان کے طور پہ تو سرکار نے یہ کر لیا، گورنر صاحب نے یہ مان لیا، لیکن فیلڈ میں ابھی تک اس کا کوئی بھی فائدہ
इंतजाम, कोई भी राहत कारी का उस तनाजुर है, कोई भी अभी प्रैक्टिकल ऑपरेटिव पार्ट जो है वो जूं का तू है। तो होता क्या है, इससे पहले भी कई बार नेचुरल क्लाइमेटी तो डिक्लेयर की गई, लेकिन अभी तक उन लोगों के पास उसके फ़ायदे नहीं पहुंचे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये ऐलान भी सिर्फ हुक्म नवाब तादर नवाब कागज़ों नहीं रहे। तो हम सरकार से अपील करते हैं, गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, बाकी जो इंतज़ामिया से, डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस बारे में जल्द अज जल्द कमेटियाँ बनाएं और अफसरों की ड्यूटी लगाएं, ताकि वो नुकसान का हॉलिस्टिक एक व्यू जो जायज़ा लेकर एक हॉलिस्टिक व्यू लें। ये भी एक पॉइंट था। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं हमारे, जैसे हॉकर सर के मामले में हम पहले भी बयान पर बयान दे चुके हैं। शायद ही हम में से कोई होगा जिसने इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया होगा, और हम समझते हैं कि ये हुकूमत की एक अखलाकी जिम्मेदारी है कि हॉकर सर के मामले में जो गर्द छटी हुई है, इसको गर्द जो अटी हुई है, इसको साफ़ किया जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी ताकि सामने आ जाए, और जो इसमें अफेक्टेड हैं, विक्टिम्स हैं, उनकी बात जो है वो सुनी जाए, और उनके पूरे इत्मीनान कल्बी जो है उन्हें पूरी तरह से मुतमईन करने के लिए एक अगर कोई इंक्वायरी हो रही है तो उस इंक्वायरी में ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक चीज़ें जो हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। हम चाहेंगे कि सरकार इस मामले में खुल के एक स्टेटमेंट भी दे और अपनी पोजीशन भी वाजे करे, और इंसाफ जो है वो न सिर्फ हो बल्कि होता नज़र भी आए। इसी तरह श्रीनगर शहर में राशन की बड़ी दिक्कत हो रही है। एक तो रास्ता बंद है, कीमतें आसमान को छू रही हैं, ब्लैक मेलिंग आसमान पे है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, 1 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बेची जा रही है। जो कड़म जो साग कल 40 रुपए किलो था, समझ नहीं आती, दुकानदार खुलेआम उसको 80 रुपए में बेच रहा है। यही हाल टमाटर का है, यही हाल प्याज का है, यही दूसरी अशिया का है। कोई उनको देखने वाला, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो हम सरकार पर जोर देते हैं, खासकर डिविजनल कमिश्नर साहब का डोमेन है, डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो इसमें हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों पर एक तरह का चेक, एक तरह की निगरानी का जो है वो होनी चाहिए, ताकि कम से कम ये जो खौफ खुदा से बेजार लोग हैं हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़, इन पर थोड़ी सी पाबंदी लगे, इन पर भी कानून का इतलाक़ हो। इसी तरह हमारे जो महकमा फूड है, ये क्या कर रहे हैं कि श्रीनगर में लोगों को आधार कार्ड के बगैर राशन नहीं दे रहे हैं, जबकि आधार कार्ड अभी भी श्रीनगर शहर में मेरे ख्याल में 60-70% लोगों के पास नहीं है, और उसके लिए आम शहरी से ज़्यादा सरकार खुद जिम्मेदार है। सरकार आधार कार्ड दे ही नहीं रही है। जो लोग जा रहे हैं, नाम दिखा रहे हैं, उन्हें वादा फ़र्दा पे टरकाया जा रहा है। तो अब अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो इस हंगामी सूरत हाल में अफसरों की तरफ से आधार कार्ड का बहाना लेकर लोगों को भूखे मारना, मैं समझता हूँ ये तो एक सफाकी है, ये तो एक बेरहमी है। तो हम डायरेक्टर फूड से कहते हैं, और जो इनके कमिश्नर हैं उनसे भी, और ड्यू काम से भी, इस मामले में फिल वक्त अगले 6 महीने के लिए एक तरह का लीनियंट व्यू लिया जाए। एक लीनियंट व्यू देकर उन्हें आधार कार्ड के बगैर राशन दिया जाए, ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो। तो इसी तरह पानी की दिक्कत हो रही है, पानी कई जगहों पर नहीं, शहर में नहीं है तो देहात में भी। तो ये भी हम सरकार पर जोर दे रहे हैं कि पानी की जो यहाँ सख्ती है उसको दूर करने के लिए जो भी मुमकिन हो वो किया जाए। तो एक और बात जो बहुत ही अहम है, जिसमें शायद आप में से बहुत से उसके जो उसका तनाजुर है, उसका जो पस मंज़र है, या उसकी जो ग्रेविटी है, शायद सभी मेरे दोस्तों को तो पता होगा, लेकिन हो सकता है बेखबरी भी हो। यह है कि जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, ये बड़ा ही संजीदा है। इसमें इन्होंने जो कमेटियों को बनाने का पैटर्न रखा है, सबसे पहले हमें उस पर एतराज़ है। जंगलों में जहाँ हमारे एसटी वाले जो बहन भाई हैं वो रह रहे हैं, दूसरे लोग भी हैं जो जैसे हमारी कश्मीरी बरादरी, कश्मीरी बोलने वाले हैं, या दूसरे लोग हैं अदर दैन एसटी, तो 60-70 साल से लोग जंगलों में रह रहे हैं। तो सरकार किस तरह से क्या करने जा रही है, अभी ये बात वाज़ेह नहीं। इसको लेकर लोगों में मेरे ख्याल में कम से कम 10 लाख लोग हैं जो इससे मुतासिर हो सकते हैं। तो उनके अंदर एक खौफ, एक तरह का दहशत है। तो सरकार को इस बारे में वजाहत करना पड़ेगी। और जब जो कमेटियाँ फ्रेम हो रही हैं, चूँकि ऊपर से दबाव है, तो तमाम ज़िला
जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने एक हुक्म निकाला है कि 24 घंटे में ये बना लो, 25 घंटे में ये बना लो। तो ये कहीं बंद कमरों में ज़्यादातर कमेटियाँ बन रही हैं। तो मेरा ये मुतालबा है, हम सब का, हमारी जमात का, अपनी पार्टी का ये मुतालबा है कि इस सिलसिले में लोगों को जमा करके लोगों के नुमाइंदों को चुना जाए, ताकि कल वो लोगों के जो मामलात हैं उनको एड्रेस करें। मैं आपकी नोटिस में एक बात लाऊँ, आपको भी इस बात की तरफ ध्यान देना होगा। अभी पिछले दिनों में एक साहब को देख रहा था टीवी पे, एक सहाफ़ी को नाम नहीं लूँगा, तो वो जंगलात के बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे, लगता था उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं, तो एक रिकारिक में वो फंसे हुए थे। सवाल ये है कि एक ज़माना था आपका जो ये अमीरा कदल था, ये भी जंगल था। अब आप इसको उसी तरीके से निकालें तो फिर आपको अमीरा कदल को भी खाली करना है। तो वो एरियाज़ जहाँ लोग 60-70 साल से बस रहे हैं, जहाँ जंगल की ज़मीन आज ना जंगल है, ना फॉरेस्ट है, ना दरख्त है, ना कोई चीज़ है, जहाँ लोगों की मकान है, लोगों के बाग हैं, ये तो 70 साल ग्रो मोर फूड के तहत लोगों ने ये ज़मीनें आबाद की हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर इन लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा तो आप किसको बसाना चाहते हैं। अगर हम आर्मी को सिक्योरिटी ज़रूरत के तहत हज़ारों कनाल ज़मीन दे सकते हैं, अगर हम शीप डिपार्टमेंट को हज़ारों कनाल ज़मीन दे सकते हैं, अभी अगर हम दूसरे सरकारी इदारों को दे सकते हैं, तो असल में जंगल की हिफाजत होनी चाहिए, जंगल का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का फ़र्ज़ है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि जंगल जो है ये आवाम के लिए है, ना कि आवाम जंगल के हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर, 2 सवाल है मेरे आपसे। आपने हर एक जो यहाँ पे डिपार्टमेंट से उंगली उठाई, एलजी से लेके डिवकॉम तक। शहरी श्रीनगर के मेयर हैं जुनैद मुत्तू, उन पे आपने सवाल निशान नहीं बनाया क्योंकि श्रीनगर की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। क्या इस वजह से कि वो अपनी पार्टी से बिलोंग करते आप चुप खामोश रहे? एक ये सवाल। दूसरा ये है कि एक सवाल का चलो पहले ज़्यादा पहली बात है कि आपका, मुझे माफ़ कीजिएगा, आप शुरू ही आपने शायद सही दुरुस्त, मैं ना दुरुस्त कहूँगा कि हमने शुक्रिया के साथ गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया उस SRO 103 के। ये पहले आप इस बात को दुरुस्त कर दीजिए। उसके बाद मैंने SMC का जिक्र किया, मैंने इंटीरियर्स का जिक्र किया, मैंने सड़कों की नासाफी का जिक्र किया, मैंने उसका जिक्र किया। तो ये मेरे ख्याल में जब मैंने श्रीनगर म्यूनसिपलिटी पर उंगली उठाई तो सीधी सी बात है कि मैंने उनको भी उस रडार पर ले लिया। अब अगर आप कहते हैं कि नाम नहीं लिया, ऐसा मेरे जहन में ईमान में ऐसा कुछ भी नहीं। आप ये मानते हैं कि श्रीनगर जो मेयर है इस वक्त जुनैद मुत्तू आप ही की पार्टी है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन तो फेल है, तो उनका जिस हिसाब से वो चला रहे थे वो एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल है, क्योंकि श्रीनगर के लोगों को कोई भी राहत का काम नहीं हुआ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैंने पहले ही कहा कि पूरा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं बर्फ की वजह से फेल हो गया। मैंने ये भी कहा कि तैयार नहीं था शायद इस सारे के लिए। उसमें ड्यूकाम भी आएंगे, उसमें सरकार भी आएगी, उसमें श्रीनगर म्यूनसिपलिटी भी आती है, और मेयर होने की हैसियत में जुनैद मुत्तू साहब या उनके कमिश्नर साहब जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है और सबसे ज़्यादा जवाब दे तो वही। तो वो उनका कहना है कि मशीनरी होनी चाहिए, तो लेकिन इंटीरियर्स के लिए ऐसी कौन सी मशीनरी होगी? उसके लिए तो ऑब्वियसली वहाँ के जो मैन हैं, जो वर्कर्स है, वही काम करेंगे। अभी वो ऐसा नहीं हो रहा है। मशीनरी का ताल्लुक है, ये मशीनरी का रोना सिर्फ एक जगह नहीं रोया जा रहा है। ये आप शोपियान चले जाएं, आप अनंतनाग चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, ये बात सच है। देखिए, जो सच है वो कहना चाहिए, वो ये है कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फिर आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नाम पर क्या कर रहे हैं। ये सच है, आपको 20 मशीनें ज़रूरत हैं, आपके पास 2 हैं, ठेकेदारों का पिछला पैसा इसी तरह बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी तो बहरहाल इसके लिए भी तो इंतज़ामिया जिम्मेदार है। अगर वो ये कह रहे हैं हमारे पास ये नहीं, इट इज़ बिटवीन दैम एंड दैम, यानी वो और उनके जो अफसरान वाला हैं उनके साथ वो टेक ओवर करें। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको पब्लिक डोमेन में आकर हाथ खड़े करें। सर, आपने कहा था कि जो नेशनल हाईवे इस पे कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा है कश्मीर में, तो कैन यू एक्सप्लेन फर्दर? ब्लैकमेल से मेरा मतलब ये है कि वही रोड बंद होती है तो जो दुकानदार है, जो सरमायादार है, जो कोठदार है, तो वो लोगों को ब्लैकमेल करता है, पैसे चीज़ों को ज़खीरा अंदोज़ी करता है, होर्डिंग करता है। ब्लैकमेल से मेरा ये मामला है। सर, अगर देखा जाए वो यहाँ नहीं है पर जो आप सोच रहे हैं। सर, अगर देखा जाए यहाँ पर आप वो शोले का डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि मौसी को वो सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन उसमें कोई खामी नज़र नहीं आती। आपने यू आर काउंटिंग डजन्स ऑफ सच ग्रीवेंसेस हियर। तो एक स्टेटमेंट आपका मैंने पढ़ा था कि अगर हमारे जो ग्रीवेंसेस है एड्रेस नहीं किए जाते हैं,
हम रोड्स पर आएंगे, तो आपने करीब करीब दर्जन पर ग्रीवेंसेस यहाँ में सुनाई, तो क्या आपको नहीं लगता है दिस इज द मेन रीजन कि मतलब आपको भी सड़कों पर होना चाहिए था बसूरत दीगर कि आप मीडिया से एक मुखातिब हो रहे हैं? आपका ही स्टेटमेंट था ये। आप मेरे जवाब से कितने मुतमईन होंगे मैं नहीं जानता। अब पहले वो मूसी वाली बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैंने मूसी को कहाँ बचाने की कोशिश की, तो बहरहाल अगर मूसी की होती तो शायद मैं बचाने की भी कोशिश करता, लेकिन अब बाकी रहा सड़कों पर निकलना, मेरे ख्याल में ये एक इस्तारा है, मेटाफर का मतलब ये नहीं होता कि हम सड़कों पर निकलेंगे, तशद्दुद करेंगे, गाड़ियाँ तोड़ेंगे, पत्थर फेंकेंगे। मेरे ख्याल में ये छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए, तो इस वक्त पब्लिक मसाइल को लेकर चंद महीने पहले वजूद में आने वाली पार्टी जितनी एक्टिव है, जितनी वोकल है, जितनी वाइब्रेंट है, शायद हम थोड़ा सा आप हमें शायद हमारा सबसे गलत है, जो भी सड़क पर आता है वो पत्थर नहीं फेंकते। नहीं, आप ही की स्टेटमेंट आप मेरी बात सुनिए। अगर आपने कल भी हमारे प्रेसिडेंट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी हो, तो मेरे ख्याल में वो सड़कों पे आने से ज़्यादा बात है। जब इस तरह की ज़रूरत अभी मतलब हम कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचने की, तो वो एक ऑप्शन है, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन दैट इज द लास्ट डिजार्ट नॉट। उसमें कुछ पॉलिटिशियंस जो है, जो हमारे यहाँ पर सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वो ये ब्लेम करते हैं इट वाज ऑलरेडी प्री-प्लान्ड। बुखारी साहब गए, उन्होंने मतलब सिग्नेटरी वहाँ पर बने और उन्हीं का जो मतलब क्रेडिट जाता है अब बुखारी साहब को देंगे कि हमने जी एज लिमिट अब ठीक कर दी। देखिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? प्रिजम्पशंस अजम्पशंस के लिए स्काई इज द लिमिट। कौन क्या सोचता है ये उसकी सोच है। ये अगर सच है तो उसको सबूत से आना चाहिए, अगर सच नहीं तो वो बहुतान तराशी से काम ले रहा है, वो झूठ बोल रहा है, तो झूठों पर मैं क्या कहूँ, वो झूठ का बवाल अपने लिए ले रहे हैं। हमारी तरफ से ऐसी अगर हम झूठ बोलते हैं कि ये पहले से तैयार था, तो हम पर भी वही चीज़ लागू होगी जो झूठों पे होती है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। इट वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग प्री प्लान। हम प्री प्लान का वेट नहीं करते हैं, हम डे टू डे मसाइल को उजागर करते हैं। अभी आपने कहा, अभी आपको मैं एक मिसाल से कहूँगा कि अभी जो भी बर्फ गिरी, तो अगले दिन हमने इतना हंगामा किया शोपियान में, सड़कों पर निकले, तो ड्यू का हमको वहाँ आना पड़ा। वो मैं भूल गया था वो बात कहना, और मैंने जानबूझ के उसको अवॉइड किया था शोपियान को। शोपियान में बर्फ का कहर था, तो ड्यू काम को शोपियान बाजार से ऊपर 5 किलोमीटर तक हमने एक तरह से मैं समझता हूँ खींच के वहाँ पहुँचा। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। सर वो वीडियोस मैं भी इंटरप्ट करना चाहूंगा, वो वीडियोस जहाँ तक आप ड्यूकॉम की बात करें, सबसे पहले सोशल मीडिया पे कहर हुआ था, उस वीडियो की वजह से जो है ड्यूकॉम को वहां पे पहुंचाना पड़ता, तो कहीं ना कहीं से आप इसको इंटरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारी वजह से आना पड़ा। उससे मैंने पहले ही कहा कि सभी लोगों ने अपने हिस्से का अदा किया। अगर आपको हमारा क्रेडिट हासिल नहीं होता है तो आप दूसरे का हासिल कर लीजिए। नहीं, हासिल की बात नहीं है सर। बात ये सोशल मीडिया पे कहर हुआ था, ये ठीक है। ये आपने बताया सोशल मीडिया पर भी हमने भी किया था, टू एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर। यस सर। आप बहुत देर के बाद, जबकि सिचुएशन जो है ऑलरेडी सिख फ्रॉम ए सिख कम्युनिटी, एक सिख जो है 3 दिन तक मैसूर रहता है यहाँ पर औलिचीबाग में। दिस इज अ डिफरेंस ऑफ 3 मिनट्स ऑन फ्रॉम एसएमसी टू औलिचीबाग। मगर आपको नहीं लगता है कि आप एक हफ्ते के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी अपनी ही पार्टी, फादर ऑफ स्टेट जो है वो अपनी पार्टी से है, आपने उसको नहीं बताया, आप यहाँ पर मीडिया को बता रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आप मत बताइए कि मतलब हम यहाँ पर आप हमें हजम नहीं होता है? नहीं, हमारा काम है, we have every right to ask you सर, आपने अपनी पार्टी के मेयर को क्यों नहीं बताया कि ऐसी ग्रीवेंसेस है, जबकि वो मीडिया में भी है? आपने 2-3 बातें कही। पहली बात है कि मैंने ये अर्ज की, सोशल मीडिया पे हम भी अपने ग्रुप पे अपना हिस्सा अदा करते थे, थोड़ा या ज्यादा। उसके बाद अभी मैंने यहाँ अर्ज की थी कि अभी 2 दिन या 3 दिन पहले हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने भी यही इशूज वहाँ एजिटेट किए। अल्ताफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने भी एजिटेट किए। उससे पहले दिलावर साहब ने मीडिया से बात की, उन्होंने भी एजिटेट किया। हम बैठे कब, लेकिन ये ज़रूर है कि पहले 2 दिन 3 दिन बर्फ इतनी ज़्यादा थी, शायद उसमें कहीं कहीं कोई डिले। इवन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं अपने अपने हेडक्वार्टर्स पर, इनसे भी जो बन पाया
किया। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी वजह से सारा कुछ हो गया या हमने सब कुछ किया। Expectations मैंने लोगों की नहीं, होती है। पहली बात है काइंडली expectation नहीं एक हुकूमत में है। सेकंड एक सेकंड कैसी पहली expectation? एक सेकंड पहली बात तो ये है- सरकार में मत पहली- है। हाँ नहीं ठीक है, पहली बात मैंने शुरू में कहा सरकार में आम लोग भी नहीं होते ना, मीडिया होता है सर। हमारी कोशिश- लेकिन तो भी यहाँ पर लोग जो है बेल निकल कर निकले सड़कों पर आए। नहीं, खुद यकीन मानिए देहात में ये जरूरी नहीं है हर कोई काम जो है ये सरकार में रहने नहीं, किया जाए। आप अपनी पार्टी जो है बड़ी पार्टी है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे है, तो इस वजह से मैंने ये सवाल किया। अगर आपको किसी को बुरा लगा हो तो इसके लिए माफी मांगो। खुदा गवाह है तो बुरा लग रहा है, लेकिन हम आपस में देखिए ये कभी होता है कि वो हम एक दूसरे पे वो फेंकते रहते हैं, उसको इस तरह नहीं दीजिएगा प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं ऐसी कोई देखिए बात मैं ये कह रहा हूँ कि हम सोए नहीं थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम में से कोई भी मुकम्मल नहीं है। दूसरी बात है, ये मिर्ची वाली बात आपको बड़ी गजब की। कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमारे कारकुन निकले, अगर आप चाहें हम आपको डिटेल्स देंगे, चाहे वो कुपवारा हो, चाहे शोपियान में हमने लोगों को निकाला, नसरपुरा में हमने लोगों को निकाला। हमारा काठा वालन एक गांव है, शायद आपने शोपियान में, वहाँ एक बंदा मर गया था, मशीन टूट गई, मशीन उलट गई, 200-250 वर्कर हमने निकाला, बर्फ उठाई। शादाब जो मेरा गांव है वहाँ हमने बर्फ उठाई। वो कौन सा गांव है जहाँ हम थे, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ हम नहीं उठा ली, और लोगों ने भी उठाई हो, लोगों ने भी वॉलंटियरली जो हो सकता है। सिचुएशन की ग्रीन समझने की कोशिश की। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इसमें अपना छोटा सा हिस्सा जो है इस्लाह अहवाल के लिए कर रहे हैं।